Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, now let's start the next class of animal kingdom, which is aves. So today we are going to study about the characteristics of class aves. We can call them the birds. In this class the birds are included. So we are going to study about the birds. तो आज बात करते हैं birds की important characteristics features के बारे में. The study of the birds is also known as ornithology. अगर आप birds से related study कर रहे हैं, इसका मतलब है that you are studying ornithology. So study of birds is known as ornithology. So this is an important term which you should know, that the study of bird is known as ornithology. इसी तरीके से एक related term और है जिसे बोलते हैं nidology. Nidology is the study of the nest of the birds. तो bird के जो nest से related study होती है उसे बोलते हैं nidology. This is the study of nest. Okay, this is general information about the birds. अगर हम बात करें that important scientists that worked on to the respect of the studies of the birds, the name of the Dr. Salim Ali comes in our mind. Dr. Salim Ali was the famous ornithologist in the India, and he is also known as the bird man of India. तो ये एक और important चीज है, bird से related है, इसलिए यहाँ पे बताना चाह रही हूँ that Dr. Salim Ali, he is very famous ornithologist of India, and he is also known as the bird man of India because इन्होंने इतनी ज़्यादा studies की है, इतनी information provide करवाई है, इसी वजह से इन्हें ये special name दिया गया है the bird man of India. अब हम आते हैं apes के characteristics पे. These apes, these are the birds and they have to fly. इन्हें fly करने की जरूरत होती है, and for these flight purpose they have streamlined body. इनकी जो body होती है वो होगी streamlined body, or we can say that they have spindle shaped body. इनकी जो body है वो spindle shape होगी, streamlined और spindle shape. इस तरीके की body वो body है जिसमें हम कह सकते हैं कि कॉर्नर से मींस फ्रंट और इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट पे ये फ्लैट होता है, नैरो होता है और बीच में से ब्रॉड होती है. इस तरीके की बॉडी को स्ट्रीमलाइन बॉडी और स्पिंडल बॉडी बोलते हैं, स्पिंडल शेप बॉडी बोलते हैं. रीजन इज दैट दे हैव टू मूव इन द मीडियम. इन्हें एयर में मूव करना है, एंड टू रेजिस्ट द प्रेशर ऑफ द एयर दे नीड दिस टाइप ऑफ स्पेशल बॉडी. बर्ड्स हैं, फ्लाइंग बर्ड्स है, फ्लाई करते हैं. मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आर द फ्लाइट, सम आर द फ्लाइंग फ्लाइटलेस बर्ड्स आल्सो. तो यहाँ पे हम ऐसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देखेंगे कि कैसे बर्ड्स को फ्लाइंग में हेल्प करने के लिए उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं, क्या क्या स्पेशल एडवांटेजेस उनके अंदर प्रेजेंट है. सो दिस इज आल्सो द सेम थिंग, स्ट्रीमलाइन बॉडी व्हिच हेल्प्स देम टू फ्लाइंग में हेल्प करती है. नेक्स्ट थिंग वी कैन से दैट दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. वार्म ब्लडेड एनिमल्स, और वी कैन से दैट दे आर होमियोथर्मल. They are homeothermal. This is very important thing. अभी तक हमने पीछे जितने भी क्लासेस पढ़ी हैं all are the cold blooded. अगर आपको याद हो poikilotherm और cold blooded थे animals. But this is the first class of the vertebrates which has this special characteristic feature. So you should keep remember that they are warm blooded animals. This is the first class of the vertebrate where warm blooded animals are found. अब वार्म ब्लडेड है, रीजन क्या है वार्म ब्लडेड होने का, या वार्म ब्लडेड का पहले मतलब तो समझ लें हम. वार्म ब्लडेड जैसे हमने कोल्ड ब्लडेड में देखा था जहां पे बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता रहता है. बट इन दीज एनिमल्स द बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट विद द एनवायरनमेंट. चेंज नहीं होगा, चाहे किसी भी एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, इट विल रिमेन कांस्टेंट. दैट व्हाई दे आर नोन एज होमियोथर्मल एनिमल्स. Reason for this is that they have high metabolic rate. इनकी metabolic rate बहुत high होती है, और इस high metabolic rate को बना के रखने के लिए इन्हें कंटिन्यूसली फूड की जरूरत पड़ती है. ये लगातार खाते रहते हैं. आपने देखा होगा बर्ड्स थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहेंगे. इसका रीजन यही है टू मेंटेन देयर मेटाबॉलिक रेट so that they can remain constant their body temperature. So this is also very important characteristic feature that they are warm blooded. इसके बाद हम क्लास mammalia study करेंगे. In the class mammalia also the same feature is there. So these are the two classes only where warm blooded animals are found.
ओके नाउ अब हम बात करते हैं इनके एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन की। पहले एक्सोस्केलेटन, in their exoskeleton they have feathers. Exoskeleton has the feathers because they need to be fly, and for this they have feathers which makes their exoskeleton. Body जो है feather से cover रहती है जो exoskeleton बनाएगा. Endoskeleton has again some advantages. Endoskeleton जो है इनमें bony endoskeleton present रहता है, means it's completely formed of bones. Bone से बना हुआ endoskeleton है, but here also one advantage is that they have a long bones and most of the bones are joined with each other. जैसे tail vertebrae हैं आपस में join हो गए, तो यहाँ पे bones जो है ना लंबी लंबी bones है, long bones है, and they joined with each other. And these long bones has the air cavities. अंदर से hollow होती हैं long bones, and these hollow bones are known as pneumatic bones. Pneumatic bones. So we can say that they have long hollow bones in which the air cavities are found. एयर कैविटी है, हल्की है, खोखली बोन्स है, जिसकी वजह से बॉडी में वेट नहीं आता। अब बॉडी में वेट नहीं होगा तभी तो बर्ड्स आसानी से फ्लाई कर सकेंगे। सो टू अवॉइड दिस मींस वेट कंडीशन, वेट ना हो, इस वजह से बोन्स जो है वो लाइट वेट होती हैं, होलो होती हैं, एंड इस तरीके की बोन्स को बोलते हैं न्यूमैटिक बोन्स। सो मोस्ट ऑफ द बोन्स विच आर द लॉन्ग बोन्स, जो लॉन्ग बोन्स होंगी these are the pneumatic bones, वो pneumatic होंगी, अंदर से hollow होंगी, इसका मतलब है hollow bones. Okay, so this is about the exoskeleton and endoskeleton. अब अगर हम बात करें that एक और important characteristic feature यहाँ पे देखने को मिल रहा है, that is related with their sternum. इनके sternum के अंदर, sternum जैसे कि आपको पता है that in our chest bone, जो हमारी chest bone है, front का जो bone है जिससे ribs connected रहती हैं, this bone is known as sternum. In the birds has this sternum is known as keeled sternum. जो sternum होता है उसे keeled sternum या कील बोलते हैं। sternum की शेप थोड़ी इस तरीके की होती है, मींस इट्स अ वी शेप स्ट्रक्चर विच रिमेन आउटसाइड, बाहर की तरफ होगा, एंड द फ्लाइट मसल्स आर अटैच्ड विद दिस sternum. फ्लाइट मसल स्टर्नम के साथ अटैच है, सो दैट दे हेल्प देम टू फ्लाई, फ्लाइंग में हेल्प करने के लिए। सो स्टर्नम इज अ कील्ड स्टर्नम, हम कील्ड भी ले सकते हैं और स्टर्नम को कील भी बोलते हैं। सो दे हैव कील्ड स्टर्नम बाय विच द फ्लाइट मसल्स अटैच, फ्लाइट मसल जो है इनकी वो अटैच रहेंगी इस स्टर्नम के साथ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये भी इन बर्ड से रिलेटेड। ओके, अब स्किन, स्किन इज द रफ और सॉरी ड्राई स्किन, स्किन जो होती है ड्राई स्किन होती है बर्ड्स के अंदर, स्किन इज नॉट स्मूथ, दे हैव ड्राई स्किन एंड नो ग्लैंड्स आर फाउंड। यहाँ पे इन बर्ड्स के अंदर कोई ग्लैंड्स नहीं होती एक्सेप्ट द वन ग्लैंड्स विच इज नॉन एज प्रीन ग्लैंड्स। सिर्फ एक ही ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं प्रीन ग्लैंड, और it is also known as oil gland, and these glands are found at the base of their tail. टेल का जो एंड पॉइंट होता है वहां पे ये एक स्पेशल ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे हम प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड कहते हैं, एंड दीज ग्लैंड सीक्रेट्स द ऑयल। इस ग्लैंड से ऑयल सीक्रेट होगा। आपने कभी देखा है कि बर्ड्स कभी भी खाली नहीं बैठते, जब भी बर्ड्स फ्री है वो अपनी बीक को पीछे लेके जाएगा अपने टेल पार्ट पे, और वहां से कुछ मींस इसी ऑयल ग्लैंड का ऑयल जो होता है उसे अपनी बीक पे चिपकाता है, और देन इट स्प्रेड्स दिस ऑयल ऑन टू द फेदर्स, अपने फेदर्स पे स्प्रेड करता है, सो दैट दे कैन रिमेन वाटरप्रूफ रहे और साथ में क्लीनिंग भी होती रहती है। सो दिस इज द पर्पस, दिस ग्लैंड फाउंड ऑन द टेल रीजन एट द बेस ऑफ द टेल, टेल के बेस पे प्रेजेंट है, और वहां से बर्ड्स इस ऑयल को लेके अपने फेदर्स पे स्प्रेड करते रहते हैं। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, द प्रेजेंस ऑफ दिस प्रीन ग्लैंड और द ऑयल ग्लैंड, एंड इट प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल, टेल के बेस पे प्रेजेंट है। देखा कितना इंटरेस्टिंग फीचर है, तभी तो बर्ड खाली बैठे हुए ना वहां से इस ऑयल को अपनी बीक के साथ अटैच करवाते हैं और अपने फेदर्स पे स्प्रेड करते रहते हैं। सो ये रीजन है बर्ड्स का। आप कभी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बर्ड्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो दिस इज द अबाउट देयर स्किन। नाउ लिम्स की अगर बात करें, दे हैव फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, दोनों तरीके के लिम्स प्रेजेंट है, बट their four limbs get modified into the wings.
फोर लिम्स का मॉडिफिकेशन हो गया है ताकि विंग्स बनाए, जो उनके विंग्स होते हैं जो उन्हें उड़ने में हेल्प कर रहे हैं, दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द फोर लिम्स। एंड द हाइंड लिम्स, लिम्स की बात करें, द लिम्स, फोर लिम्स make the wings get modified into the wings, four limbs से ही wings बन रहे हैं। but the hind limbs जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, hind limbs का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। so hind limbs, these limbs are long in size and they help into the perching में help करते हैं। hind limbs they help into the perching। now what does it means, perching का क्या मतलब है? They have pentadactyl limbs, यानी कि 5 digits होती हैं, 4 in front and 1 is present at the backward। When the birds sit on any support, कोई वायर है, कोई जगह है या ब्रांच है ट्री की, जहां पे भी बैठता है तो वहां बैठते ही उनकी बॉडी में एक तरीके से लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से उस अटैचमेंट, एक अच्छी ग्रिप उसकी बन सकती है। तो इस चीज को हम बोलते हैं पर्चिंग। तो जैसे ही बर्ड बैठेगा, these hind limbs help them to make a grip with this support। but when he has to be fly, जैसे ही उसे उठना होता है, फ्लाई करना, तो पहले वो अपने विंग्स को हिलाना शुरू करता है, so that जो उसकी बॉडी का वेट है वो हल्का हो जाए और वो हवा में आ जाए, and then this grip can be removed। फिर ग्रिप छूटती है और फिर बर्ड उड़ता है। so this is about their limbs, four limbs and hind limbs। Four limbs are modified to make the wings, and hind limbs which are the little bit larger in the size, किसी किसी बर्ड में तो बहुत लंबे भी होते हैं, तो साइज में बड़े होंगे, and they help into the perching में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। अब हम बात करते हैं the systems, different type of systems which found into the birds। रहे डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू करते हैं। they have complete digestive system complete है, in which the teeth are not found, they have a beak। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में इनमें हम इंक्लूड कर सकते हैं कि बीक होती है, they have beak, but beak does not have the teeth। यहाँ पे teeth present नहीं होते, teethless होगी, teeth are absent into their beak। तो birds कभी भी कोई चीज खाते हैं तो they just swallow this thing, completely उसको swallow कर जाते हैं। फिर उनके स्टमक में जाने के बाद वहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो इसका डाइजेशन करेंगे। सो यहाँ पे टीथ प्रेजेंट नहीं है। सम एडिशनल चैम्बर्स आर आल्सो फाउंड इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइक क्रॉप एक स्टोरिंग एजेंट की तरह, एक ऑर्गन की तरह काम करेगा जहां पे फूड स्टोर हो रहा है। एंड दे हैव गिजर्ड इज आल्सो प्रेजेंट। गिजर्ड वो पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का विच हेल्प्स इनटू द ग्राइंडिंग द फूड को ग्राइंड करने का काम करेगा। So these are the additional chambers are found in their digestive system. Beak doesn't have the teeth. Now let's talk about their respiratory system. In their respiratory system, they have lungs, means they do pulmonary respiration। Respiration जो होगा वो pulmonary होगा, lungs के through होगा। But here the important thing is that they have air sacs। lungs have air sacs, lungs के अंदर air sacs present होते हैं। air sacs क्या है? These are the site where the air get filled। lungs जब inhalation कर रहे हैं, when the person doing inhalation, they are taking air inside, these air will come into the lungs where the gases exchange happens, and when they do exhalation, air will comes out। but when the air comes out, the first it comes out from the lungs and then from the air sacs। so air sac जो है ना, एक air को means filled रहती है air sacs के अंदर, और यहाँ से already almost every time they get supplied with the fresh air। तो fresh air की supply इन्हें बनी रहती है air sacs की वजह से। काफी बड़े air sacs हैं जो पूरी body में different parts पे भी present रहते हैं। So this is the important thing। they do यहाँ पे जो sound producing organs हैं, they are known as pharynx। sound producing organs are known as pharynx, जिसकी वजह से आवाज जो आती है बर्ड्स की, जो बहुत अच्छी आवाज हमें लगती है, it's produced by the pharynx, that is the sound producing organ। sound producing organ है बर्ड्स का। ओके, नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ दिस बर्ड्स हैव द 4 chambered heart। हार्ट इज 4 chambered, कंप्लीटली डबल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट। जैसे ह्यूमन में होता है डबल सर्कुलेशन है, यहाँ पे भी डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट रहेगा। वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं।
So they have complete double circulation and the oxygenated and deoxygenated blood gets separated. कोई mixing नहीं हो रही blood की. तो almost mammals like या human like यहाँ पे blood circulatory system present है, but they have one variation related with aorta. In the case of human being, जो aorta होती है वो heart से बाहर निकल के left side turn करती है. But in the case of apes or the birds, the aorta turns towards the right side. So this is the worst one exception. Otherwise, all things are same here. Excretory system, they have pair of kidney present रहेंगी, but they do not have the urinary bladder नहीं है. Again this is a adaptation, ये भी एक adaptation है, एक modification है ताकि ये flying कर सके आसानी से. urinary bladder में यूरिन स्टोर होता है, अगर यूरिन को स्टोर करेंगे तो बॉडी वेट इंक्रीज होगा. तो यहाँ पे इस तरह की कोई चीज ही नहीं है कि बॉडी वेट इंक्रीज हो. सो urinary bladder is absent and they are uricotalic because the water supply is less, they do not have the continuous water supply. Uricotalic, so uric acid की फॉर्म में they are secreting their waste. Uricotalic because water supply नहीं है, तो सबसे जो less required जो excretion matter होगा, जहाँ पे water supply बहुत कम चाहिए होती है, वो uric acid ही है. So they will excrete their waste in the form of uric acid. So they are uricotalic. Okay, this is about their excretion. Now let's come on to their nervous system. Nervous system, they have 12 pair cranial nerves. 12 pair cranial nerves, and that is also a feature. Cranial nerves are there, 12 pair. And sense organ की बात करें, they have very keen eyesight. इनकी जो eyesight होती है, इनकी जो vision होती है वो बहुत अच्छी होती है. They can see the any object from very high height. जैसे birds बहुत ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, और अगर नीचे ग्राउंड पे या वाटर में भी कोई एनिमल्स है जिसे प्रे है, जिसे उन्हें कैप्चर करना है, लाइक रैट हो गया या फिर माउस वगैरह जो भी है जिसे उन्हें कैप्चर करना है, सो वो वहां से भी उसे देख सकते हैं. तो इनकी जो सेंस ऑफ विजन जो होती है वो बहुत हाई होती है. बट देयर सेंस ऑफ स्मेल इज वेरी लो. सेंस ऑफ स्मेल इतनी डेवलप नहीं होती. दे हैव सेंस ऑफ विजन और देयर विजन इज वेरी हाई और वेरी कीन. दे हैव वेरी कीन विजन एंड द सेंस ऑफ स्मेल इज वेरी लो. स्मेल जो होती है वो बहुत लो होती है. स्मेल से रिलेटेड इतना कुछ नहीं है यहाँ पे. स्मेल इतनी अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते सभी बर्ड्स, बट विजन बहुत अच्छा होता है. ईयर की अगर बात करें, देयर इंटरनल ईयर हैज ईयर ऑसिकल, बट इट हैज ओनली वन ईयर ऑसिकल, दैट इज स्टेपिस. ओनली द स्टेपिस इज प्रेजेंट. स्टेपिस प्रेजेंट इन देयर इंटरनल ईयर. We know that in our ear ossicles we have 3 bones, but in the case of birds they have only one bone. One ear ossicle is there, that is the stapes. तो स्टेपिस यहाँ पे प्रेजेंट रहता है. अब हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर. द सेक्सेस आर सेपरेट. सेक्सेस सेपरेट होते हैं. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता है. मींस वी कैन सी द और वी कैन आइडेंटिफाई द मेल एंड फीमेल बर्ड. आप बाहर से देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा मेल बर्ड है, कौन सा फीमेल बर्ड है, क्योंकि जो मेल बर्ड होते हैं दे आर वेरी ब्यूटीफुल एज कंपेयर टू द फीमेल बर्ड्स. लाइक अगर हम पीकॉक के केस में बात करें, मेल पीकॉक जो होता है वो ज्यादा ब्यूटीफुल होता है फीमेल पीकॉक की वजह से कंपैरिजन में. बिकॉज जो यहाँ पे मेल्स के केसेस में ना सुपीरियरिटी जो है, ब्यूटी की सुपीरियरिटी वाला जो एक क्राइटेरिया है वो इंक्लूड किया गया है. सो मेल्स आर द मोर ब्यूटीफुल देन द फीमेल. सो दिस इज अबाउट देयर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. एंड हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मींस बर्थ जो हो रहा है दैट इज बाय द ओविपेरस. दे आर ओविपेरस. ओविपेरस होंगे मींस दे ले देयर एग. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फीचर. अब ओविपेरस क्यों है? अगर ये विविपेरस होते तो इन्हें एम्ब्रियो को अपनी बॉडी में रखना पड़ता, वहीं पे फीटस ग्रो करता. दैट इज अनदर रीजन. अगर ऐसा होता तो बॉडी का वेट इंक्रीज हो जाता. टू रिड्यूस द वेट दे ले देयर एग. दे ले देयर फर्टिलाइज एग एंड दिस जो एग का डेवलपमेंट होगा वो बाहर ही होगा. जब तक हैचिंग नहीं होती एग बाहर प्रेजेंट रहेगा, एग को ले कर देंगे. तो ओविपेरस हैं, दे ले एग एंड द एग्स आर द कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ योग. एग में बहुत ज्यादा योग प्रेजेंट होता है और इसी वजह से इन्हें पॉलीलेसिथल एग बोल सकते हैं. पॉलीलेसिथल एग.
they have polylecithal eggs. The eggs which contain the high amount of yolk. So this is about their reproductive system. And one more thing is that the development is the direct development. Development direct होगा, कोई लार्वा स्टेज नहीं होती. एग से हैचिंग होगी, इंडिविजुअल बाहर आएगा. इंडिविजुअल बाहर आने के बाद इन सम बर्ड्स जो इंडिविजुअल होते हैं वहां पे उनकी आईज ओपन नहीं होती, फेदर्स प्रेजेंट नहीं होते, तो उस तरीके के इंडिविजुअल कुछ टाइम के लिए पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, लाइक इन द केस ऑफ स्पैरो. बट इन द केस ऑफ चिक्स, जहां पे जैसे ही इंडिविजुअल एग की हैचिंग के बाद बाहर आता है, दे हैव विंग्स, दे हैव ओपन आईज एंड दे कैन वॉक. तो आसानी से वो वॉकिंग कर सकते हैं, बट दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स. So this is about all the important characteristic features. The birds can be divided into the two categories. यानी कि हम कह सकते हैं कुछ birds जो fly करते हैं, flighting birds होते हैं, and some are the flightless birds. Like flightless में हम include कर सकते हैं that penguin हो गया, ostrich हो गया. These are the birds which are the flightless birds, but most of the birds have the wings, have the feathers to fly, and they have these kind of special characteristic features which help them to fly. So this is all about these class apes. Now we'll discuss about the next class, which is the mammalia.